Hello students, today in video number 59 we will discuss history, the last topic, rise of India as a nuclear power. You know the chapter important events of post-independent India. So today we will see the topic India as a nuclear power. So nuclear, you know, there is a some elements, mineral, that is radioactive elements they are called. So here there are uranium, thorium, plutonium. So these are radioactive elements, and with the help of these elements there is a creation of heat energy. With the help of uranium, thorium and plutonium we create heat energy, and with help of energy hard water that is put in the form of steam, and that steam forcefully move the turbine, and by moving the turbine there is a producing of electricity. Okay, and it is very big topic in the science, as you know, when you will go in 11th or 12th. So there is the quantum of energy, there is a theory, the quantum of energy based on nuclear reaction. So briefly here I am explaining some concept of nuclear energy. So nuclear reaction, there is two types. First number, nuclear fusion and nuclear fission. There is a difference of U and I. Fusion and fission. Fission means there is a, you know, in a nuclear means in this element there are three particles, electron, protons and neutron. Electron always moves around nucleus, means proton and neutron. So when these electron combine with proton or neutron, so there is a releasing of energy, heat energy, that is called atomic energy. And here also in nuclear fission there is a breaking of particles, here combining of particles, here breaking of particles from electron to proton and neutron. So electron just break or go away. So there is also creation of heat, means by combining the particles it is also creation of heat, and by going opposite direction means breaking, this is also creation of heat. So that is called atomic energy. On this concept, nuclear fusion and nuclear fission, on the basis of two reaction there is a creation of heat energy, and there is called also atomic energy. This heat energy we use in producing heat, and that heat forcefully, you can say that, move, it help to move the fan of turbine, and that after moving this fan of turbine there is a producing of electricity. Okay, and means you can understand 1 kg uranium produce 27,000 tons of coal, means energy. 1 kilogram uranium produce the same energy produced by 27 tons of coal. या आप कह सकते हैं कि 1 किलो यूरेनियम उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है जितना कि 27,000 टन का कोयला प्रोड्यूस करता है. तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम, तीनों एक ही रेंज के हैं. तो 1 किलोग्राम से 27,000 टन के बराबर इलेक्ट्रिसिटी मीन्स आप हीट प्रोड्यूस होती है. तो उस हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, और इसी को यूज़ करके हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करके हम
उसको एटॉमिक एनर्जी का नाम देते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी या वेपन्स के रूप में उसको हम उस हीट को यूज़ करते हैं. ओके, नाउ सी इट इज़ द थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. नाउ सी इन इंडिया atomic energy act it was made on 1948. इस एक्ट के तहत जो भी इंडिया में प्रोग्राम्स होते हैं या इसके जो मॉडिफिकेशन फॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिया में प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं. मीन्स गाइडलाइन ऑफ दिस एक्ट, अंडर द गाइडलाइन ऑफ दिस एक्ट. सी है सबसे पहले टाटा इंस्टीट्यूट कहाँ खुला था? मुंबई में 1945 में. ओके, देन भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर, ये कहाँ पे है? ट्रॉम्बे, जो कि बॉम्बे का पार्ट है. ये कब होता? 1957. देन अप्सरा रिसर्च रिएक्टर, ये भी इसी का पार्ट है, भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर का ही, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में ही है. ओके, तो ये जो डिज़ाइन किया गया था अप्सरा रिसर्च रिएक्टर, किसके द्वारा? भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर. तो ये थे स्टार्टिंग में इंडिया के रिएक्टर्स, लेकिन इनका पर्पस था मेन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल पे, न कि बिग स्केल पे. लेकिन फिर इंडिया में जो कमर्शियल पर्पस के हैं रिएक्टर्स, उनको इस्टेब्लिश किया गया, जो कि किसके लिए हैं? मेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए. सीयर तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे है? महाराष्ट्र. कोटा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे है? राजस्थान. कलपक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर तमिलनाडु. नरोरा न्यूक्लियर रिएक्टर उत्तर प्रदेश. ओके, तो ये आपको याद रखना है, नेम और लोकेशन, ये रिएक्टर कहाँ कहाँ पे हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन अब इन द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड के उसमें देखें बैकग्राउंड में, सो फॉर द फॉरेन पॉलिसी, अवर फॉरेन पॉलिसी वॉज पीसफुल कोएक्जिस्टेंस. सो द सीन वॉज चेंजिंग इन वर्ल्ड, द सिनेरियो वॉज चेंजिंग एंड many countries like China, America, France, Britain, they became the nuclear power. So India also realized to become a nuclear power as a weapons. Here it was only for electricity, but here India also realized to become a nuclear power as a weapons. Okay, so for the national security, India also made nuclear test as a weapons. So starting there is a, in the first test was in 1974 by the contemporary Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, but it was not weapons, it was not for weapons. ये जो टेस्ट हुआ था 74 का इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो ये वेपन्स के पर्पस से नहीं था, इसी से एक नॉर्मल टेस्ट था, स्टार्टिंग टेस्ट. ओके, देन 1980 तक द पॉलिसी, इंडियन पॉलिसी, इट वाज अगेंस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर एज अ वेपन्स. ओके, हम किस पे यकीन कर रहे थे? पीस. बट इट चेंज्ड आफ्टर 80 के बाद ये पॉलिसी को चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो वर्ल्ड सिनेरियो है इट वाज चेंजिंग. जो वर्ल्ड, जो दुनिया के और देश थे, वो लगातार वेपन्स टेस्ट कर रहे थे और इंडिया पे भी प्रेशर पड़ रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, अदरवाइज और कंट्री के द्वारा जो थ्रेट है, जो धमकियां हैं, या जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है. तो इसके तहत अब ये प्रोग्राम शुरू किया गया वेपन्स के बेस पे 1980 के बाद. तो 1990 के टिकेट में, उस
टाइम पे ऑन 11 मई 1988, ऑन 11 मई 1998 पोखरण, ये भी हुआ था पोखरण में, ये भी हुआ था पोखरण में टेस्ट हुआ, 3 टेस्ट, ओके, बट इट वाज अंडरग्राउंड टेस्ट। अंडरग्राउंड मीन्स किसी को पता नहीं था कि टेस्ट हो रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट, तो दुनिया की नज़र में ये नहीं हुआ, मतलब ये टेस्ट पता नहीं चला दुनिया को, और इंडिया ने वो टेस्ट कर लिया। 98 का टेस्ट पोखरण राजस्थान, 3 टेस्ट हुए, और किसमें थे ये, वेपन्स के पर्पज से, और इसमें जो मेन थे अपने प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम और उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे ये टेस्ट किया गया, और इस तरह से इंडिया क्या बन गया, एक न्यूक्लियर पावर आफ्टर दिस टेस्ट, ओके। जो टॉपिक है अपना एज ए न्यूक्लियर पावर, तो इंडिया जो बना न्यूक्लियर पावर किस पे बना, द टेस्ट ऑफ 11 मई 1998 पोखरण में, जो कि राजस्थान में है। 3 टेस्ट हुए अंडरग्राउंड टेस्ट, और जिसमें से किसका था मेन पर्पस, वेपन्स बनाने के पर्पस से। तो इसके तहत इंडिया में जो मिसाइलें बनी वो पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश एंड अग्नि, ओके। तो ये जो है मिसाइल्स बनाई गई। अगर कोई पूछे कि मिसाइल्स ऑफ इंडिया, तो आपको यही देना है, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश एंड अग्नि, ओके। अब इस तरह से इंडिया का जो टेस्ट था वो एक तरह से दुनिया के लिए क्या था, सरप्राइज, किसी को बिना भनक लगे इंडिया ने टेस्ट कर लिया, खासकर पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं शॉकिंग न्यूज़ था ये। तो इंडिया के अलावा इसके बाद फिर बहुत सारे देशों ने भी वेपन्स का टेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले ही यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कुछ चीज़ें बनाई गई टू चेक प्रोलिफरेशन, मीन्स जो आप कह सकते हैं जो होड़ है वेपन्स की, एक तरह का जो टेस्ट करने का जो एक तरह से आप कह सकते हैं रेस है, इसको रोकने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। इसमें से आपका है पार्शियल मॉस्को एटॉमिक टेस्ट बैन ट्रीटी, से बोलते हैं PTBT, ये कब हुआ था 1963 पार्शियल मॉस्को एटॉमिक टेस्ट बैन ट्रीटी। ये 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ये कंट्रोल करते हैं वेपन्स का जो रेस है उसको, ताकि जितना ज़्यादा वेपन्स होगा उतना ही थ्रेट होगा दुनिया के लिए, तो उसको कम से कम करना, मिनिमाइज करना न्यूक्लियर वेपन्स को। तो उसको ये हैं 3 ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंट्रोल करते हैं कि ज़्यादा से मतलब कम से कम वेपन्स हों दुनिया में। देन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बैन ट्रीटी, जिसे बोलते हैं NPT, ये कब हुआ था 1968। और जो मेन है कॉम्प्रहेंसिव एटॉमिक बैन ट्रीटी, CTBT, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ओके। सो दीज आर द organizations. So here in today if you see in the contemporary, so अमेरिका के पास सबसे अधिक वेपन्स हैं। अमेरिका जितनी दुनिया के पास हैं उसका हाफ किसके पास है, अकेले अमेरिका, USA के पास सबसे अधिक वेपन्स। सो इस तरह से इनके साथ साथ इंडिया भी किस रैंक में एज ए न्यूक्लियर पावर, okay. So these are the things, so I hope you will read and understand the topic, and next we will see exercises, okay. Thank you, have a nice day.